Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Muji from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter Why Do We Fall Ill? Chapter number is 3rd. And in this chapter today my topic to discuss is specific ways of prevention of diseases, prophylaxis, and this is 9th standard biology. आज हम स्पेसिफिक वे क्या रहते हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शंस या डिजीजेस जो बॉडी को लगती है once a person got a disease or infection, what is a specific mechanism. तो हमारा स्पेसिफिक mechanism is our immune system and immunization. First is immune system. Immune system and immunization. इम्यून सिस्टम जो होता है ये हमें इम्यूनिटी देता है. इम्यूनिटी मीन्स टू डिफेंड आवर बॉडी against any microbial infection. इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द इम्यून सिस्टम, जिसमें हमारी जो बॉडी है वो डिफेंड करती है माइक्रोबल इन्फेक्शन से. डिफेंड करते हैं हमें. Microbes are pathogens which cause many diseases. Those diseases are harmful. और हमें उस लिहाज से हमारी बॉडी जो होती है वो डिफेंड करती है बाय मीन्स ऑफ इम्यून सिस्टम. Immune system provides us immunity naturally, defend our body. The process of defending the body against the microbial infection is known as immunization. Our immune system, you know that, yeah, they release the antibodies. They release antibodies against the antigens. Antigens can be the microbes which could enter into our body, or it can be any foreign particle. Any foreign particle or microbe, when on entering into our bodies, a chemicals releasing by means of immune system, various chemicals are releasing. Those chemicals act as antibodies which fight against these antigens. In this way our body is protected by microbial infection or diseases. तो ये हो गए इम्यून सिस्टम. अब जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, इम्यूनिटी जो मिलती है इम्यून सिस्टम से, वो दो तरह के. एक तो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरा है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. ये आज इसमें पढ़ेंगे. जो हमारा इम्यून सिस्टम विच प्रोवाइड्स अस इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस of defending our body against the microbial action, against the microbial infection, on producing the various antibodies to fight against those microbes or pathogens. And this is the process of immunization. Our body in this way is protected. now मैंने बताया इसके दो टाइप्स है immune system. One is the cell mediated immunity. Another is the antibodies mediated immunity. दोनों इम्पोर्टेंट है. दोनों का काम है टू डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ माइक्रोबल एक्शन और एंटरिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल विच इज अननोन टू आवर बॉडी. दोनों इन्वॉल्व होते हैं.
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है? हियर द body cells play important role in providing the immunity. Immunity means to provide a strength to a body to fight against the infection. those infection is caused by pathogens. जो सेल जो है, खासतौर हम बात कर लेंगे WBCs सेल्स, लिम्फोसाइटस, लिम्फोसाइटस, या हम बात कर लेंगे मैक्रोफेजेस. These cells are available in our body to fight against the bacteria, to fight against the germs. तो जो these cells, I am talking about the cells, सेल जो है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, they provide the immunity, they fight against them. As you talk about WBCs, basophilus, neutrophilus, eosinophilus, basophilus, तो ये जो है मैक्रोफेज जो होते हैं, ये तरह तरह फाइट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट तरीके से. जिस तरह के मैक्रोफेजेस का क्या रोल रहता है, दी सेल्स, दे आर द giant cells, they are the giant cells, they engulf bacteria, and any particle which is unknown to body, and digest them. ये क्या करता है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस हमारे बड़े साइज के सेल्स होते हैं, इन्फेक्टिव फाइटिंग सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं या एनी पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं, निगल लेते हैं, एंड उनको डाइजेस्ट करते हैं. ये सेल मैक्रोफेजेस दे हैव अ phagocytic role, they have phagocytic role, phagocytic in nature. These are phagocytic in nature. That means these cells are phagocytic in nature. That means they engulf bacteria, any foreign particle which enter suddenly into our body, and macrophages are ready to fight against them in this way. So phagocytic in nature means they engulf those bacteria, those foreign particle, and destroy within the cell. तो इसी तरह से जो वेरियस लिम्फोसाइट्स है, WBC साइट्स है, या अगर क्या ब्लड में इंफेक्शन हो या टिश्यूज में इंफेक्शन हो, वहाँ ये WBC सेल्स अवेलेबल होते हैं. दे फाइट अगेंस्ट द इंफेक्शन, दे डिस्ट्रॉय, दे किल दोज पैथोजेंस. ये हो गए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. दूसरा होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं. एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होते हैं, दोज एंटीबॉडी, आई टॉक अबाउट द T lymphocytes या और B lymphocytes. These antibodies, whenever produced, they fight against the antigens. Antigens can be microbes which are pathogenic in nature, or can be any foreign particles. तो ये जो है एंटीबॉडीज, these antibodies are the chemicals. This type of lymphocyte, T lymphocyte, are produced by the thymus gland, and this type of antibodies are produced by the bone marrow. जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, वहाँ पे जो रेड बोन मैरोज होते हैं, वहाँ पे ये बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं. चाहे T लिम्फोसाइट्स हो, B लिम्फोसाइट्स हो, T किलर सेल्स हो, या हेल्पर सेल्स हो, जो भी ग्रेड ऑफ lymphocytes हो, they provide us the any kind of immunity in order to defend our body by the attack of virus, by the attack of bacteria, by the attack of the foreign particles. तो यहाँ इस तरह का एंटीबॉडीज
प्रोड्यूस होते हैं ताकि इस कदर जो एंटीजेनस होते हैं उनको क्या होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करके उनको डिफेंड करते हैं, उनको मार देते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर हम बात कर लेंगे यही इसी कॉन्सेप्ट की, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स आई मीन कौन से, अगर हम बात कर लेंगे बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, they are of various types. One is the plasma B cells, other is the, other we can say the plasma B cells, other is the, we can say प्लाज्मा बी सेल्स है इसमें, या ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर ब्लड प्लाज्मा में इन्फेक्शन हो वहां पे ये फाइट करते हैं उनके खिलाफ। प्लाज्मा बी सेल्स है, बी लिम्फोसाइट्स है, या मेमोरी बी सेल्स है, मेमोरी बी सेल्स, दीज आर द एंटीबॉडीज। खाली ये सेल्स क्या होता है, ये मेमोराइज करते हैं। अगर इस एंटीजन से बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार ये एंटर होता है हमारी बॉडी में, ये बार बार उसको रिकॉग्नाइज करके अदर एंटीबॉडीज को रिलीज करके उसको फाइट कराते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कराते हैं। मेमोरी बी सेल्स एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज है जो कि दे डोंट पार्टिसिपेट इन किलिंग द बैक्टीरिया, इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये खाली उसको मेमोराइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है बॉडी सेल्स पे, फिर ये अलर्ट मैसेज भेज देता है अदर एंटीबॉडीज टू कम हियर एंड फाइट दिस टाइप ऑफ पैथोजन। दीज आर द मेमोरी बी सेल्स। तो याद रखिए मेमोरी बी सेल्स है जो प्रोड्यूस होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स या मेमोरी बी सेल्स। तो यहाँ पे थर्ड जो है, यहाँ पे हम कहेंगे जो सेल्स और भी है इसमें, मेमोरी बी सेल्स, हेल्पर बी सेल्स जो होते हैं वो भी फाइट करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। यहाँ पे जो है एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, इस तरह के बहुत सारे जो लिम्फोसाइट्स एक्ट एज द antibodies, these are the chemicals which fight against the infection। antibodies mediated immunity में एक मैकेनिज्म आता है, मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन, एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन। ये एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन जो है इट इज लाइक की एंड लॉक, की एंड लॉक। जिस तरह की एंड लॉक जो होता है, या की एंड लॉक मिसमैच भी होता है, मैच भी होता है। जब मैच होता है तब मैचिंग होती है की एंड लॉक, देन वी कैन रिकॉग्नाइज द एंटीजन। अगर मिसमैच होता है तो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना ड्यूरिंग द एंटीबॉडीज एंटीजन इंटरेक्शन, रिएक्शन के दौरान अगर ये मिसमैच हुआ तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा सकते हैं एंटीजन, तो एंटीबॉडीज उस वक्त फेल होते हैं टू फाइट अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दैट टाइप ऑफ पार्टिकल। तो ये की और लॉक जैसा इंटरेक्शन होता है, चाबी ताला है, आपको चाबी लगी तो अंदर जा सकते हो, रिकॉग्नाइज देख सकते हो क्या हाल है, क्या मामला है। अगर आपका ताला, आपके पास ताला है और इसमें चाबी नहीं लगते, मिसमैच हो रहा है, तो आप अंदर जानकारी हासिल नहीं कर सकते, अंदर अंदर पहुंच के आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो एंटर होने में, फाइट करने में आपको कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढना है। ये यही जैसा काम है एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन में। जो एंटीबॉडीज होते हैं, पहले एंटीजन फाइट करने से पहले ये किस शेप में होते हैं, टी शेप में। जब when they reaches to the antigen and have a fight, they changes from T to Y shape। वो एंटीबॉडीज एक्टिव फॉर्म में, जब when antibodies are active in state, they are ready to fight against the antigens, उस वक्त किस क्या होते हैं, Y शेप में। जब ये
पेसिव इंसिटेट होते हैं, शाबाश याद रखिए पेसिव इंसिटेट होते हैं। उस वक्त पेसिव इंसिटेट में ये किस फॉर्म में होते हैं, शाबाश टी फॉर्म, टी शेप में। तो जब भी ये व्हेन देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज रिएक्शन, they change from T shape to Y shape. So Y shape is the activity state of the antibodies. T shape is the passive state of antibodies. जब भी एंटीजन एंटर होते हैं हमारी बॉडी में, यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है, इंटरेक्शन होती है बस सेल के बॉडी, जो हमारे बॉडी सेल होते हैं, बॉडी सेल के सरफेस पे, बॉडी सेल के सरफेस पे ये एंटीजनस होते हैं विच इज अननोन। ये एंटीजनस होके इनको रिकॉग्नाइज करना होता है, मेमोरी बी सेल्स रिकॉग्नाइज, हाँ मेमोराइज दीज टाइप्स ऑफ एंटीजन्स। जब ये बॉडी सेल है, व्हाट इज दिस, इट इज अ बॉडी सेल। बॉडी सेल के सरफेस पे क्या है, एंटीजन। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, आप सिक्रीट हो जाओ अपने सेल से, जी सेल्स आर एक्टिवेटेड, they change from T shape to Y shape. When they change into the Y shape, then they are able to fight against the antigens. यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज एंटीजन इंटरेक्शन में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडी जो वाई शेप में होते हैं, वाई शेप में होते हैं, ये एंटीजन को इकट्ठे करता है, एंटीजन उसको सिटिक करता है। सिटिक क्या होगा, चिपकाते हैं, सिटिक टुगेदर। उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं एग्युलेटेशन, एग्युलेटेशन होता है एंटीजन का जमा होना। मान लीजिए ये बॉडी सेल है, ये दूसरी बॉडी सेल है, ये तीसरी बॉडी सेल, ये चौथी बॉडी सेल है। क्या होता है, यहाँ इसके ऊपर एंटीजन है विच कॉज, जो बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं इन ऑर्डर टू कॉज द इन्फेक्शन। तो यहाँ ये एंटीजन एंटर होके क्या होता है, दीज और सेल्स आर इन्फेक्टिव, है ना। तो अब जो एंटीजन्स आते हैं वाई शेप में, ये देखो मैं बिलो फॉर्म में, बिलो मार्कर से लिखता हूँ, ये जो यहाँ एंटीबॉडीज आए, इसने इसको लॉक किया, एंटीजन आए, लॉक किया, और लॉक करने के बाद आप देखिए इसने इनको टुगेदर स्टिक किया, इस चीज को हम कहते हैं एग्युलेटेशन। तो एक ही जगह जमा कर लिया, फिर ये इधर उधर फ्रीली टू मूव नहीं है, इनको हमने कैच किया, ट्रैप किया है। जब हमने इनको ट्रैप किया है, यहाँ एंटीबॉडीज ने इनको ट्रैप किया है, तो एक एग्युलेटेशन बनता है। फिर इन्फॉर्म प्रोवाइड होता है मैक्रोफेजेस के, जो बहुत बड़े सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस। देन मैक्रोफेजेस इजीली एनगल्फ दिस एग्युलेटेशन। जो एग्युलेटेशन में क्या होता है, इन्फेक्टेड सेल्स जो इन्फेक्ट हुआ है शबा एंटीजन से, ये जो वाई फॉर्म में मैंने बताया एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज आ गए तो वाई शेप में। तो यहाँ जो मैंने अभी पहले बताया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो मैक्रोफेजेस होते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस दिस विल एनगल्फ दिस होल प्रोसेस। वो जगह हमारी बॉडी में वो प्रोटेक्टेड रहा, वो सेफ है, तो इट इज फ्री फ्रॉम द एंटीजेंस बाय द रोल ऑफ द एंटीबॉडी। यही होता है एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी में, क्या होता है, एंटीबॉडीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। मैकेनिज्म ये है जो मैंने बताया। तो एक इसमें आता है एक्टिव, वी कैन से एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा आता है पेसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी होता है जब भी एंटर होता है, ध्यान रखिए, जब भी एंटर होता है एंटीजन, हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स जिनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, WBCs, वो क्या होता है, वो अलर्ट होके दे आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट दिस एंटीजन्स। अब क्या होता है, ये इसमें आता है एक्टिव नेचुरल
एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। वो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है दैट प्रोवाइड्स अस एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी व्हेन there is entry of antigen can be virus, bacteria, protozoa, fungus, even foreign particle which is unknown, which is allergic इंसिडेंट। तो जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं ये ट्रिगर करता है एंटीबॉडीज को to release, to secrete the antibodies, body cell secrete the antibodies, then there is a, अभी मैंने पढ़ा है, there is a antibodies antigen interactions। हाँ, तो जिस तरह बहुत सारे एंटीजन्स को मार देते हैं, न्यूट्रलाइज किया जाता है या एनगल्फ किया जाता है, ईट अप किया जाता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। दूसरा होता है एक्टिव इम्यूनिटी बाय, तो बाय प्रोवाइड द वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? ये स्मॉल एक्सट्रैक्शन होता है माइक्रोब्स के। इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ microbes which is injected into a healthy body, है ना, हेल्दी बॉडी में इंजेक्ट करके वहां इम्यून सिस्टम को एक्टिव में लाने के लिए यहाँ से हम वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स यू एक्टिव इम्यूनिटी, ताकि हम ऑलरेडी उस इन्फेक्शन को ऑलरेडी हम रेडी रहे उस इन्फेक्शन को डिफेंड करने में, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में जो हमें माइक्रोब से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से लगी हो। तो वैक्सीनेशन ऑलरेडी दिया जाता है ताकि आइंदा इन फ्यूचर एक डेवलप किया जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी। इसके बाद छोड़ो आप, ये नेचुरल इम्यूनिटी हो गई, हमारे बॉडी का अपना रोल है। एक्टिव इम्यूनिटी हम लाते हैं वैक्सीनेशन से, एंटीबॉडी से, ताकि हमारा बॉडी इन फ्यूचर इस माइक्रोब को याद रखे। अगर हम यहाँ मेरा मतलब है, जिस तरह हम सोल्जर उसको ट्रेनिंग करते हैं, आपको अगर इस तरह का हमला हो सकता है आप कैसे डिफेंड, अगर इस तरह का आप पे हमला होगा, वार होगा, तो आप कैसे डिफेंड कर सकते हो। इसी तरह से हम बहुत सारे वैक्सीन जब इंजेक्ट किया जाता है, बहुत सारे एंटीबॉडीज को जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, हमारा यही गर्ज होता है, हम अपने इम्यून सिस्टम को सिखाएंगे कि आपको आइंदा इस माइक्रोब से, इस पार्टिकल से कैसे फाइट करना है। तो पहले ही इसको एक्टिव में लाना, उसी को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी बाय मीन्स ऑफ वैक्सीन, बाय मीन्स ऑफ एंटीबॉडीज, तो बाय मीन्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो वो उसमें हम क्या लाते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी लाते हैं, ताकि इम्यून सिस्टम को एक्टिव लाने में, अगर इस किस्म की इन्फेक्शन हो जो हमें बाहर से मिली हो, तो बॉडी दूसरी बार हमें ये वैक्सीन नहीं लेना है, बॉडी इज नाउ ट्रेन्ड टू डिफेंड दैट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। यही एक्टिव इम्यूनिटी हम ला सकते हैं शाबाश एंटीबायोटिक्स। We have antibiotics, penicillin, tetracycline, है ना, polymyxin, तो streptomycin, they are एंटीबायोटिक्स। ज़्यादातर हम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया पॉपुलेशन से या फंगल पॉपुलेशन से इनको प्रिपेयर किया जाता है, ताकि इस गारज से असल में ये क्या होता है, ये जो एंटीबायोटिक होता है ये माइक्रोबल एक्सट्रैक्शन होता है, माइक्रोबल एक्सट्रैक्शन। यहाँ एंटीबायोटिक का गर्ज होता है टू फाइट वन माइक्रो फाइट अनदर माइक्रोब। तो जिस तरह हम ये कहावत भी है, लोहा लोहा कोई काटता है, इसी तरह से जो माइक्रोब है, वन माइक्रोब is prepared and have tendency to fight against the another microbe। तो इन माइक्रोब्स का हम एक्सट्रैक्शन लेके हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद जब हम इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, वो एक्टिव आता है, दैट इज एक्टिवेटेड। हाँ, अगर ये तरह का माइक्रोब हमारे बॉडी फिर स्टिमुलेट होते हैं, हमारे बॉडी सेल जो होते हैं, लिम्फोसाइट जो होते हैं, WBC सेल्स होते हैं, या अदर बॉडी इन्फेक्टिंग
इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं वो एस्टिमुलेट होते हैं, वो हमेशा के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो आइंदा हम चौकिंदा रहे, अलर्ट रहे, उस चीज़ को हम डिपेंड करें उस बॉडी को एट दैट टाइम। तो इस तरह का जो इम्यूनिटी जो कहलाते हैं, हम कहते हैं उसको एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? ये नेचुरल वे है, नेचुरल, इट इज अ नेचुरल वे। पैसिव इम्यूनिटी इट इज नेचुरल वे, इट इज अ नेचुरल इम्यूनिटी। ये पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? आपको पता है जो मदर्स मिल्क है, मदर्स मिल्क, हाँ, whenever mother's milk contain the antibodies। अभी जो बच्चा होता है, इन्फेंट जो होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, इन्फेंट, उनमें अभी वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम नहीं होता है। माँ का दूध जो कंटेन करता है एंटीबॉडीज, जब वो इन्फेंट सकल करता है मदर्स मिल्क, उनमें इन्फेंट्स के बॉडी में वो एंटीबॉडीज पहुंचता है। वो हम कहते हैं व्हेन देयर इज अ breast milk feeding by the babies, it what that baby obtain passive immunity। इस तरह से जब फ्यूटस जो होता है, जब ये यूटीरस में होता है, वॉम, मदर्स वॉम में होता है, मदर्स वॉम जैसे प्लेसेंटा, वहाँ पे भी इसको नरिशमेंट मिलता है, इसको ब्लड एक्सचेंज होता है माँ के ब्लड से, other substances are exchanging, oxygen is exchanging through the placenta. Through the placenta, various materials flow through the fetus and mother to baby, mother to fetus। तो वो चीज़ भी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है। वो हम इस चीज़ में पेशु इम्यूनिटी होती है, जो हमें यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, मदर्स मिल्क contain the antibodies, and the infants when they have a suckle, they suckle the mother's milk, so that obtains the passively the antibodies। It is a also temporary, it is temporary natural immunity, we can say temporary, it is temporary natural immunity। it part time obtain immunity। बच्चा जो है वो डेवलप करता है strength to fight against the infection। So mother's milk is very important, it is example number first। Example second is the when there is a development of fetus in the mother's womb, and there is a exchange of the nutrients, oxygen, antibodies, वो भी एक पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, जो पार्टली जब भी बच्चा उस यूटीरस में, प्लेसेंटा में डेवलप होता है 9 मंथ तक, तब वो उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड हो, तो इन्फेक्शन होने के भी चांसेस वहाँ होते हैं। तो वो चीज़ ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइक्रोबल प्रोटोजोनल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन ना हो, तो वो चीज़ पैसिवली उस बच्चे को प्रोवाइड होता है। ये मैंने दो एग्जांपल इसमें मेंशन किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स, following topic, that what are the specific ways of fighting against the infection। Our body has a mechanism to fight against the infection, wide range of infection। Our body has capability or in the tendency to fight against the wide range of infection, bacterial, protozoal, viral। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, जो प्रोवाइड होता है स्पेसिफिक वे जो होता है, दैट स्पेसिफिक वे इज द रोल ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को आपको बिल्कुल पावर में लाना है, कैपेबिलिटी में लाना। अभी तो पेंडेमिक डिजीज कोरोना वायरस जो होता है, अभी ये एम्पावर क्यों हो रहा है, व्हाई इट दिस इन्फेक्शन बिकम वेरी कॉमन अमॉन्ग द पॉपुलेशन, बिकॉज इट डिटरमाइंस द इम्यून सिस्टम, किसका इम्यून सिस्टम कितनी टेंडेंसी में है टू फाइट अगेंस्ट। अच्छा खासा इम्यून सिस्टम के लिए आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, balance, your diet should be balanced, minerals, you should have a minerals, अच्छे खासे मिनरल्स, वाइटामिन आपके डाइट में, अच्छा खासा पानी पीना है आपको।
तो ये चीज़ें आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ में लाएगा और टेंडेंसी में लाएगा, कैपेबिलिटी में लाएगा टू फाइट अगेंस्ट द वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेंस। तो इसका तो अब स्पेसिफिक यहाँ पे आता हमारा बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसके कैपेबिलिटी टू फाइट, यही है मैंने बताया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर है। दूसरा होता है एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है, फिर बाद में एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। तो उसमें मैंने ये बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक। थैंक यू वेरी